So we'll open yesterday's drawing. Yeah, can you all see the drawing? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first, I would like to trim bottom circle. What you can see highlighted over here. उसको trim करना पड़ेगा. So I will enter the command enter tr enter all and 2 times enter. After that, you have to place the cursor wherever you like to trim. So this portion I want to clear it, so I will click here. Then you can press escape. So the rear part of the object is ready. इतना सबका हो गया ना बना के जो लोग कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. Now from this corner we need to move by 30 millimeter as per the question. तो हम लोग पहले ना right plane पे काम करेंगे. So if you look at the front view, on the right plane I need to draw an L shape. तो ये right plane पे एक L shape draw करना है as per the question. So I will type. So first of all, the layer is medium dark. Always check the layer. Layer is medium dark at the top. I will select and make it dark layer. Also look at the plane. If you look at the red color of the cursor, it is pointing towards the right plane, and we are supposed to work there only on the right plane. So I will type L enter from the keyboard. I place the cursor here. So within the green box, I will click here and move towards right. What about the distance? The distance 30. is 30. So we will type 30 enter from the keyboard. After 30 enter, नीचे कितना आना है? See from here, I need to come down, right? So if you look at the screen, you need to come down. तो क्वेश्चन में उसका डिस्टेंस कैसे मिलेगा? 30 है सर होगी. 30 होगी. हाँ तो 50 minus 20. Total height is 50 in the question minus the base 20. So to come down by 30 enter. Okay, now without pressing escape, just look at the question. And this line you need to extend. Now there are two options. See, whenever in isometric yellow and blue line meet, what you have to do is you have to extend this line beyond the blue line and then you have to pull it back. So this is option number 1. Option number 2 is you specify the length of that line in the keyboard and you can do that way also. So total length question में 100 दिया है और ऊपर का 30 minus कर दो. तो answer is 70. So which are the two options to draw the line? 70 enter करो. देखो मैं कर रहा हूँ 70. So I have typed 70. बाद में मैं enter कर दूंगा. So the moment I press enter, वो exact 70 पे आके रुक जाएगा. ये option number 1 है. Let me show you the second option also, which I done before. So I'll delete this line. I'll press L enter from the keyboard. Now carefully observe what we are supposed to do. Option number 2, if you don't want to calculate. The first point of line is this green square. You have to click here. Now carefully look at the screen. आपको जानबूझ के see if you click on the blue line, what will happen is ऊपर एक midpoint show हो रहा है. आप देखो जरा. So when I place the cursor on the blue line, it shows a midpoint. So by mistake, if you click here, तो line midpoint को connect हो जाएगा, जो गलत है. So what you should do is, you should intentionally make the yellow line to cross the blue line, as you can see on the screen now. तो इसको cross करा के click करो. Then you press escape. So the line is crossed. Now by control points, bring it back. So select the line. You will find 3 control points. Hold the last one and bring it back till the cross sign. So see, that is how option number 2 is also working. So there are 2 options. जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो. Now to continue with L enter करेंगे. From here you need to come vertically down because in the question that edge will be seen up to 20 mm. अब बिना escape press किए you have to move down the blue line
और क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या डिस्टेंस आना है 20. 20. सो यू टू टाइप 20 एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड. अच्छा अभी 30 का गैप छोड़ के वापिस लाइन, तो 20 एंटर करो पहले एंड नाउ प्रेस एस्केप बिकॉज वी नीड टू लीव अ गैप ऑफ 30, इजंट इट? तो सेकेंड ऑप्शन इज आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और वो डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में से फाइंड करना पड़ेगा. तो 100 माइनस 30 माइनस 20, तो आंसर इज 50. So you can type L enter from the keyboard. From this corner, you have to move by a length of 50 mm. So type 50 enter from the keyboard. बाद में आप escape करो. So this part is being done. Slot हम लोग last में करेंगे, okay? So now judgment क्या बोलता है कि ये जो corner है, from this corner third line has to come out. We need to draw a third line which is along the width. Okay. So I will type L enter from the keyboard. But if you look at the plane carefully, वो प्लेन राइट प्लेन की तरफ है और हम लोग काम कौन से प्लेन पे कर रहे हैं अभी? Suppose if I want to draw a line along the plane. top plane. So what I need to press? Do you remember? F5. F5. So when you press F5, ये कौन सा प्लेन हो गया? लेफ्ट प्लेन. ये लेफ्ट प्लेन हो गया. और एक बार F5 प्रेस किया. अच्छा अभी टॉप प्लेन आया देखो. Yes, sir. Okay. So first point is this corner shown inside a green box. तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे. Now I think better option is option number 1. आप 50 एंटर करो या फिर आप अगर आपको ओवर एक्सटेंड करके फिर से पुल करना है तो वो भी कर सकते हैं. सो ओनली 2 ऑप्शंस विल वर्क. नंबर 1 स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लेंथ फ्रॉम द कीबोर्ड. ऑप्शन नंबर 2 उसको जानबूझ के एक्सटेंड करके कंट्रोल पॉइंट से पीछे खींचो. सो दिस आर द 2 ऑप्शंस इन आइसोमेट्रिक. आई विल टाइप 50 एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड देन वी विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड and connect with this part. I'll press escape. So the top plane is ready. Okay, अभी क्वेश्चन में अच्छे से देखो, एक ट्राइंगुलर रिब है और उसको अगर आप टॉप व्यू में देखोगे तो थिकनेस इज 10 mm और वो रिब सेंटर में किधर तो है. Okay, so that rib is in the center. So how to draw a rib? Let us learn that. So all of you look at the screen और ये वाले कॉर्नर को देखो. From here, a third line has to go along the width. यहाँ से third line should go along the width. और अगर आप क्वेश्चन टॉप व्यू से देखोगे, ये कॉर्नर से जो एज अंदर जा रहे हैं, that should also be 50. So let us say L enter और टॉप प्लेन पे काम करना है और कर्सर भी टॉप प्लेन पे ही है. So with this point, we can drag the mouse in and type 50 enter from the keyboard. You can type 50 enter. But this will not end here. यहाँ से देखो ये लाइन अभी you can see some portion of this edge, but after read it may not be seen. But right now let us draw. तो आप अभी क्या करो? अब रफली देखो मैं किधर भी क्लिक किया तो मिड पॉइंट पे आएगा. तो जानबूझ के इसको स्ट्रेच करो beyond the yellow line. Click somewhere here and then select the yellow line and by control point pull it back till you get the intersection symbol. तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी बनाया अपने that is without rib. So if the rib was not there, the object will have been look like this. ठीक है? Now how to draw the rib? Let us learn. तो rib draw करने का तरीका क्या देखो. तो सबसे पहले you need to locate the center of this center of the rib where it is situated. तो क्या करेंगे देखो L enter करेंगे. So carefully look here how to draw the rib. After L enter, ये जो ऊपर का येलो लाइन है, this yellow line, mark that find the center of the yellow line जहाँ पे ट्राइंगुलर सिंबल है. देखो यहाँ पे ट्राइंगल का सिंबल आएगा तो उस पर क्लिक करो. ट्राइंगल पे क्लिक करके फिर ये जो नीचे वाला येलो लाइन है उसके ट्राइंगल पे क्लिक करो. So to join triangle to triangle, एक inclined line आपको दिखेगा. That inclined line looks crooked. तो crooked दिखता है. It's okay, doesn't matter. सर ये रिपीट करो ना एक बार, ये जो ट्रायंगल टू ट्रायंगल कनेक्ट करने वाला पार्ट. तो सिंपल line command यूज करना है. You have to type L enter from the keyboard
और कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है वो फ्रंट व्यू को पूछो। फ्रंट व्यू में देखो, यू टू कनेक्ट अ लाइन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये जो ऊपर का लाइन है ना उसका मिड पॉइंट, और जो नीचे का लाइन का मिड पॉइंट, वो दोनों को एक लाइन से कनेक्ट करना है। बहुत सिंपल है। तो आप कमांड एल एंटर दे दो। आफ्टर गिव एल एंटर द सॉफ्टवेयर लास्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप क्या करो, ये जो ऊपर की लाइन है, टॉप प्लेन की लाइन है, वहां पे जो ट्राइंगल करके एक सिंबल आएगा, डोंट प्रेस एनीवेयर एल्स, इधर स्क्वायर इंटरसेक्शन पे क्लिक मत करो। जब तक एक ट्राइंगल मिड पॉइंट नहीं आ रहा है तब तक वहां पे वो पॉइंट पे क्लिक करना है, और फिर कर्सर को नीचे लेके आओ, और नीचे वाली लाइन पे भी ट्राइंगल आना चाहिए। देखो यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है, कैन यू सी मिड पॉइंट लिखा हुआ है। देखो आपको लाइन दिखने में हॉरिजॉन्टल लग रही है, बट लुक एट द बॉटम कर्सर, वहां पे ट्राइंगल मिड पॉइंट लिखा हुआ है। आप वहां पे क्लिक करो, अब बाद में एस्केप करो। तो ये जो रिब है वो, ये एक्चुअल रिब नहीं है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये रिब का मिडवे हो गया। सबको इतना समझ में आया, राइट? हेलो हेलो, Yes, sir. अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ वी Yes, नीड sir. टू Yes. ड्रॉ a पैरेलल लाइन, 5 राइट एंड 5 लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। तो ये जो लाइन है वो रिब का मिडवे है, और टॉप में क्वेश्चन में दिया है रिब इज 10 mm थिक। सो आई टोल्ड यू यस्टरडे, इन आइसोमेट्रिक ऑफसेट कमांड विल नॉट वर्क, उसके बदले कॉपी काम में आता है। सो यू नीड टू कॉपी दिस line what is being highlighted by 5 right and 5 left, क्योंकि इसका thickness 5 mm है। So the command is co enter, co enter. Now the software is asking select object, we'll select this middle line, तो उसको एक बार क्लिक करो। अगेन कॉपी और मूव कमांड का, कॉपी मूव और मिरर का स्पेशलिटी है, आफ्टर यू क्लिक इट विल आस्क अगेन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा, या कोई किसको पता है? Enter. हाँ, एंटर करना है, मीन्स अवर सिलेक्शन इज डन, तो एंटर करना पड़ेगा। आफ्टर प्रेस एंटर दे आस्किंग यू टू स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। तो आप बेस पॉइंट किसको ले लो पता है, ये जो ट्राइंगल वाला पॉइंट है, मतलब ये जो लाइन का एंड पॉइंट है, आप किसी भी एक एंड पॉइंट को बेस पॉइंट ले लो। सो सी आई एम कंसिडरिंग दिस लोअर पॉइंट इज द बेस पॉइंट, तो मैंने वहां पे क्लिक किया एंड देन आई विल ड्रैग। तो मैंने स्लोली ड्रैग किया है, और नीचे पढ़ो क्या लिखा है, स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा, किसको पता है? स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट पूछ रहे हैं, तो क्या करने का? मतलब डिस्टेंस डाल सकते हैं 5 करके। हाँ, 5 डिस्टेंस का डालने का। डिस्टेंस डालेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो सेंटर को 5 से ऑफसेट करना है ना, तो कीबोर्ड से सेकंड पॉइंट 5 एंटर करो। नाउ बिना एस्केप प्रेस किए, 5 एंटर करने के बाद बिना एस्केप प्रेस किए, एस्केप प्रेस किए तो क्या होगा पता है, आप कॉपी कमेंट से बाहर आ जाओगे। सो आई वांट टू कॉपी ऑन द अदर साइड बाय 5 mm, तो आप सिर्फ माउस को ड्रैग करो उल्टा साइड में, तो यहाँ पे हुआ कि नहीं कॉपी, पता नहीं। आई टाइप 5 एंटर। ओके, एक सेकंड। सो CO enter. Select object, this one I have selected. Enter. Specify base point. So this is our base point. I will copy this by 5. Enter. On the other side by 5 enter. Just a second. CO enter. Base point इसको लिया तो हाँ, तो 5 एंटर एक साइड से हो गए। आई टाइप CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अच्छा, अब अभी मैंने बेस पॉइंट ऊपर का लिया, ये वाला, एंड आई शिफ्ट दिस बाय 5 मिलीमीटर, तो 5 एंटर। फाइव एंटर। हाँ, तो बेस पॉइंट में ऊपर वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ड्रैग द माउस एंड 5 एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड।
Just hold on for a while. तो 5 एंटर यहाँ पे हो गया है. नाउ द मिडल लाइन वी नीड टू डिलीट. सो क्लिक ऑन द मिडल लाइन और यहाँ पे आप डिलीट कर दो. So this middle line we need to delete. तो मिडिल लाइन मैंने डिलीट कर दिया है. अच्छा, ट्रिम कमांड से TR एंटर ऑल करके 2 बार एंटर. सी नाउ दिस एज विल नॉट बी सीन बिकॉज देयर इज एन इंटरफेरेंस विद द रिब. तो इसको डिलीट कर, इसको ट्रिम करना है, तो वो हमने कर दिया अभी. बट ये रिब जैसा दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो कॉर्नर है यहाँ से थर्ड लाइन शुड मूव अलोंग द लेंथ. तो रिब जैसा दिखने के लिए ट्राइंगल होना जरूरी है. सो L एंटर. अच्छा, ये जो कॉर्नर है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी विल मूव एंड इंटेंशनली हम लोग ये येलो लाइन को क्रॉस करके थोड़ा सा बाहर आएंगे, एज यू कैन सी हियर. देन वी विल सेलेक्ट दिस and with the help of control points we will move it back again till you get a cross sign like this. और नीचे intersection लिखा हुआ आना चाहिए, वहां पे क्लिक कर दो. now press escape. so now this looks like a rib. okay, अभी जो लास्ट पार्ट बच गया है वो स्लॉट है. जैसे टोल्ड यू यस्टरडे, स्लॉट पहले बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा. देखते पहले क्वेश्चन पढ़ लो. इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन स्लॉट बॉटम से 30 है. फ्रंट व्यू में देखो, फ्रंट व्यू में बॉटम से स्लॉट 30 mm है और हाइट 10 है, बट द ऑपोजिट साइड इज नॉट गिवन. तो कैसे करने का, पहले आपको स्लॉट बाहर ड्रॉ करना पड़ेगा. या सो वन ऑफ यू टेल मी, ये जो स्लॉट बाहर ड्रॉ करना है, इज इट आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक? ऑर्थोग्राफिक. हाँ, तो सबसे पहले ऑल ऑफ यू हैव टू नोट डाउन दिस. तो इफ दिस इज ऑर्थोग्राफिक, हाँ तो ये ऑर्थोग्राफिक है. तो ये फुट बटन को देखो, यू हैव टू प्रेस दिस आइसो ड्राफ्ट. ये जो आइसो ड्राफ्ट है, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग है, उसको क्लोज करना पड़ेगा. उसको, वो बटन को क्लोज करना पड़ेगा, उसको एक बार क्लिक करना पड़ेगा. सो क्लिक करने के बाद अपना कर्सर देखो, अभी कर्सर आइसो मोड में चला, ऑर्थो मोड में चला गया. सो वेन एवर यू फाइंड दिस व्हाइट कलर कर्सर, इसका मतलब वो ऑर्थो मोड में. नाउ यू शुड फर्स्ट ड्रॉ द स्लॉट आउटसाइड एज यू हैव सीन यस्टरडे इन मैनुअल ड्राइंग. तो मैं ऊपर से लाइट लाइन सेलेक्ट करूंगा. हाउ टू ड्रॉ द स्लॉट? फर्स्ट ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस 10 mm apart of any length by offset command. So we'll type L enter और कोई भी लेंथ का लाइन बना दो, एनी लेंथ 50 60 कुछ भी बना दो. तो एक लाइन ड्रॉ करो और एस्केप प्रेस करो. अच्छा, स्लॉट का हाइट 10 mm है. सो ऑफसेट दिस ब्लू लाइन बाय 10 mm अप और डाउन, इधर भी चलेगा. So O enter, O for offset, offset distance 10 enter, select object to offset. तो ये सेलेक्ट करके उसको ऊपर क्लिक करो, तो द लाइन गेट्स पैरेलल लाइक दिस. ओके, तो लाइन ऐसा पैरेलल हो गया है. नाउ ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एनीवेयर इन बिटवीन दिस 2 लाइंस. कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, L एंटर. एक वर्टिकल लाइन कहीं पर भी ऐसे ड्रॉ कर लो. ओके, तो वी आर ड्रॉइंग राइट हाफ ऑफ द स्लॉट. पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप राइट हाफ ड्रॉ किया तो भी चलेगा. फॉर ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन आई विल चेंज द लेयर टू मीडियम डार्क. ओके, अब मैं राइट हाफ ऑफ द स्लॉट ड्रॉ करने जा रहा हूं. उसका डिस्टेंस 15 mm है, 15. उसका डिस्टेंस 15 mm है. अच्छा, क्वेश्चन में ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ नहीं है. So take the angle as 45 degree. क्वेश्चन में ना वो स्लॉट का एंगल नहीं दिया है. सर दिया है. कहाँ पे दिया है बताओ? दिया है लेफ्ट साइड में slot Side पे पे। लिखा एंगल, अच्छा मेरा बुक अलग रहेगा. क्या है उसका, क्या एंगल कितना? 45 डिग्री. 45 डिग्री. अच्छा, अभी ऑर्थो में हमने कभी भी नहीं सीखा है कि 45 डिग्री कैसे ड्रॉ करने का. तो लास्ट पेज में लिख के रखो, हाउ टू ड्रॉ लाइन एट एनी एंगल, नॉट ओनली 45. अगर कोई भी एंगल रहेगा 30 60 तो कैसे ड्रॉ करना चाहिए वो हम लोग देख रहे हैं. तो लास्ट पेज में टाइटल लिखो, टू ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल. टू ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल. टू ड्रॉ अ लाइन एट एन एंगल. तो उसको अंडरलाइन करो. कमांड लिखो L एंटर.
command L enter, L for line, then specify first point. आप first point पे क्लिक करोगे वहां पे. ओके अभी स्क्रीन पे देखो मैं स्लॉट कैसे बनाता हूँ सेकंड लाइन के लिए. तो फर्स्ट आई विल टाइप L एंटर और मैं यहाँ से 15 mm पे एक लाइन ड्रॉ करके रखूंगा. 15 एंटर एस्केप. सो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट 15 का लाइन. वो पिंक वाला लाइन दिख रहा है सबको 15 वाला. Yes, sir. तो Yes, sir. ये डिस्टेंस 15 है. ओके नाउ मुझे 15 से एक लाइन ड्रॉ करना है 45 डिग्री में. आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इन दिस डायरेक्शन. तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है मालूम है ना सबको. स्लॉट बार क्यों बना रहे हैं ताकि हम लोग ऑपोजिट डिस्टेंस x फाइंड कर सके. सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द ऑपोजिट डिस्टेंस x. सो व्हाट यू रिटर्न इज कमांड L एंटर. तो देखो मैं L एंटर कर रहा हूँ. नाउ दे आस्किंग स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट. तो जो पिंक लाइन का एंड पॉइंट है अच्छा ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट. यू हैव टू क्लिक देयर. नाउ अच्छे से देखो ये नया चीज आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट. तो सबसे पहले अपना जो कर्सर है उसको ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाने दो. कर्सर का जो प्लस पॉइंट है ना उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाने दो बिकॉज वी आर ड्रॉइंग अ लाइन टूवर्ड्स फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके और यू कैन से इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. तो कर्सर को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाने दो और नीचे पढ़ो क्या लिखा है लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट. ओके सो नाउ टेल मी जब आप इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करोगे उसका लेंथ मिनिमम कितना होना चाहिए. जजमेंट से बोलो. इफ यू ड्रॉ द इंक्लाइन लाइन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दैट इंक्लाइन लाइन. 10 अगर mm. 10 तो वर्टिकल डिस्टेंस है ना. Yes, Incline sir. 10. 10 तो से ज्यादा होना चाहिए. 3.5 can I say it is more than 15 Yes, roughly sir. more than 15 बोल Yes, सकते sir. हैं. Yes, हाँ sir. तो स्पेसिफाई पहले देख लेते हैं अभी स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है. फर्स्ट यू शुड टाइप 15. देखो अभी एक स्क्वायर बॉक्स में ना पिंक लाइन के बाजू में 15 लिखा हुआ है. नाउ ऑल ऑफ यू पे अटेंशन नाउ 15 just hold on all of you. So all of you write down line specify next point. So you should type at the rate. Okay, at the rate. बाद में लेंथ ऑफ द लाइन देने का 15. आपने अज्यूम किया कि 15 होगा. सो व्हाट यू शुड टाइप एट द रेट 15. उसके बाद लेस देन साइन होना चाहिए. लेस देन का साइन लेस देन साइन एंड देन 45. सो आई विल शो यू इन द स्क्रीन वो कैसे टाइप करने का. तो जस्ट अ सेकेंड. हाँ तो स्क्रीन पे देखो आपको क्या टाइप करना है. यू शुड टाइप एट द रेट 15 लेस देन 45. तो व्हेन आई से स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट तो सबको अपना कीबोर्ड से ये टाइप करना है. एट द रेट मतलब लेंथ 15 है और इसको एंगल कहते हैं एंगल 45. सपोज आपको एंगल 60 दिया है तो इधर 60 टाइप करो. तो ये जो एंगल है ना दैट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. तो कीबोर्ड पे टाइप करके देखो एट द रेट 15. सबको दिख रहा है ना. मैंने यहाँ पे टेक्स्ट करके कमेंट से ऐसा लिखा है. Yes, sir. Yes, हाँ sir. तो ये आपको ये टाइप किया ना तो ऑटोमेटिक आपको इंक्लाइन लाइन 45 पे मिल जाएगा. एट द रेट 15 एंगल 45. ओके वो आपका सेकेंड पॉइंट ऐसा टाइप करना है तो ऑटोमेटिक आपको लाइन मिल जाएगी. सो 15 mm इज एन अप्रोक्सीमेट लेंथ. सो आई विल एस्केप. ओके नाउ लेट अस ड्रॉ दैट लाइन. सो L एंटर. फर्स्ट पॉइंट ये जो पिंक लाइन का कॉर्नर है वहां पे रखेंगे. सेकेंड पॉइंट कर्सर को सबसे पहले डायरेक्शन दिखाओ कि आपको लाइन कहाँ पे बनाना है. तो मैं कर्सर को फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ. एंड देन फ्रॉम द कीबोर्ड यू शुड टाइप शिफ्ट एट द रेट 15 और जो एंगल है
दैट इज 45 और उसको एस्केप करो तो देखो आपको यहाँ पे एक लाइन मिल जाएगी। तो नाउ यू शुड बी वेरी थरो कि अपने को कौन सा डिस्टेंस की जरूरत है। वी वांट द डिस्टेंस फ्रॉम ईयर टू ईयर, सो क्या करना है, गो टू लीनियर डायमेंशन और ये जो डिस्टेंस है क्रॉस साइन से लेके क्रॉस साइन तक इट इज 18, सो आवर एक्स इज 18, तो अपना काम यही था कि आप 18 डिग्री निकाल के रखो। अगर आपको एंगल चेक करना है तो डायमेंशन में जाके गो टू एंगुलर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज दिस, सेकेंड इज दिस वन, एंगल ओके सर एंगल नहीं आ रहा है। एक सेकंड ना, सर एल 18 एन से ज्यादा है। स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 15 at the rate 15 less than, हाँ बराबर है। एट द ये आ गया 45, देखो दिस इज 45, कमेंट सेम ही है, शिफ्ट एट द रेट 15। अच्छा वो एंगल के लिए क्या करना था पता है, एंगल के लिए ना शिफ्ट करके वो कीबोर्ड पे शिफ्ट करके एंगल प्रेस करना है। देखो एंगल 45 आ गया और ये जो लीनियर डायमेंशन है दैट इज फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो लीनियर डायमेंशन 25 आ रहा है मेरा, तो सब लोग चेक करो एंगल 45 है एंड द लीनियर Yes, sir. डायमेंशन 25। यस सर आया। ओके तो ये सब डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, ये खाली आपको दिखाने के लिए कि व्हाट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट। एंगल इज 45, दिस इज 25 और ये डायमेंशन जो आपने लिया है यहाँ से यहाँ वो एज पर क्वेश्चन 15 है। तो एग्जाम में ये सब डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, वो खाली आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि दिस इज 25, तो अपना एक्स का डायमेंशन 25 है। ओके शैल वी गो बैक टू आइसोमेट्रिक। यस सर। यस सर। सर एक बार हाँ, वापस तो- बताओ ना प्लीज सर, वो 15 हुआ शिफ्ट एट द रेट, उसके बाद 45 कैसे करो एंटर, वो समझ नहीं आ रहा है। एट द रेट 15 टाइप किया आपने, हेलो यस सर, करण, हाँ किया उसके सर। बाद उसके बाद लेस देन साइन है कि नहीं आपके पास, लेस देन साइन शिफ्ट करके लेस देन साइन, सर एक सेकंड, शिफ्ट एट द रेट वापस 15 किया, उसके बाद लेस बाद देन में- 90 का साइन आया। लेस देन 90 में लेस देन 90 नहीं, आप लेस देन 45 करना है ना, हाँ सर वो कैसे करूँ? कीबोर्ड से शिफ्ट करके वो सिंबल है ना कॉमा के साथ शिफ्ट करके लेस देन साइन है ना, Less than लेस का देन symbol साइन, यस सर, यस सर किया, बाद में 45 करो। हो गया सर, थैंक यू। हाँ तो गलती कहाँ पे होता है पता है, वो एट द रेट के बाद 15 टाइप करते स्टूडेंट्स और डायरेक्ट लेस देन प्रेस करते हैं, वो करने से कॉमा आते हैं उधर, तो शिफ्ट करके लेस देन करना है। हाँ तो आया सबको, हाँ सो एक्स इज 25, आपको याद रखना है एक्स 25 है, सो गो बैक टू आइसोमेट्रिक। अच्छा नेक्स्ट अभी आइसोमेट्रिक में कैसे ड्रॉ करना है देख लेते हैं। तो ये जो लाइन है ब्लू वाली लाइन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको 10 मिलीमीटर पहले ऊपर लेना है, बिकॉज द हाइट ऑफ द स्लॉट इज 10, वर्टिकल डिस्टेंस 10 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इसको 10 ऊपर कैसे लेंगे, कौन सा कमांड यूज करना है? ऑफसेट, कॉपी कमांड। ऑफसेट Copy. यूज नहीं होते बेटा, ऑफसेट कभी भी ऑटोकैड में यूज, Copy. आईसो में यूज नहीं होता है, कॉपी यूज होता है। ओके सर। तो सीओ एंटर, आप चाहिए तो एक बार ऑफसेट यूज करके देखो, वो लाइन की तरह और चली जाएगी। तो सीओ एंटर करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब लोग सेलेक्ट ब्लू लाइन करोगे, फिर एंटर करोगे। बेस पॉइंट, आप ये लाइन पे एंड पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो। अच्छा उससे पहले गलती हो गया, हम लोग ऑर्थो मोड पे ही है, ऑर्थो से आइसो पे जाना है। तो ये जो कर्सर दिखा रहे हैं ऑर्थो मोड है और हम लोग आइसो पे काम कर रहे हैं। सो अगेन यू टू टर्न दैट आइसो ड्राफ्टिंग ऑन, टू फुट बटन उसको ऑन करना है। ओके नाउ द प्लेन इज इन आइसो मोड, बट अगर आप कर्सर देखोगे ये टॉप प्लेन पे है और हम लोग काम कर रहे हैं लेफ्ट प्लेन पे, तो F5 प्रेस करना है। तो मैंने प्रेस किया एक बार, अभी कर्सर लेफ्ट प्लेन की तरफ पॉइंट हो रहा है, मतलब बराबर है। सो विल टाइप CO एंटर, सेलेक्ट द ब्लू लाइन, एंटर करो। बेस पॉइंट एंड पॉइंट पे कहीं पे भी ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग द माउस अप, देखो बराबर पैरेलल जा रहा है।
and type 10 enter from the keyboard. और उसको escape press करो. So that is how I am getting a line which is 10 mm parallel to this blue line. Okay. Now we are supposed to transfer. हाँ बोलो. Hello. सर वो पैरेलल कैसे हुआ? मींस Copy command. 10 Copy. enter. CO enter. बाद में ब्लू लाइन सेलेक्ट करो, एंटर करो, 10 एंटर करो. अब बेस पॉइंट कौन सा लेने का? एंड पॉइंट ऑफ द लाइन. ये ब्लू लाइन का जो Okay. एंड पॉइंट है आप कहीं पे भी ले सकते ओके सर. हो. ओके, नाउ वी फर्स्ट नीड टू ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन. इसका जो मिड पॉइंट है वो ड्रॉ करना पड़ेगा. एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है. तो वो मिड पॉइंट कैसे करेंगे? सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, द मिड पॉइंट इज 20 + 15, 35 mm. मतलब ये येलो लाइन को कॉपी करना पड़ेगा 35. सो CO एंटर, सेलेक्ट द येलो लाइन, एंटर करो. अच्छा, बेस पॉइंट जो है इसको ले लो और इसको 30 कॉपी करेंगे. 30 एंटर, सॉरी 35 गलती हो गई, तो डिलीट करेंगे पहले. अगेन CO एंटर, सेलेक्ट द येलो लाइन, enter. Base point, you can take the end point of the line, drag the mouse and type 35, enter from the keyboard. तो ये slot का midway हो गया. Let us change the color to pink for ease of identification. Okay. Now we are supposed to reproduce this slot over here. तो जैसे मैंने कल बताया था आइसोमेट्रिक मैनुअल ड्राइंग में, ये जो एंगुलर डिस्टेंस डायमेंशन है 45, दैट डजंट रिमेन 45 एक्चुअली, वो चेंज हो जाता है. इट गेट्स डिस्टॉर्टेड, बट द लीनियर डायमेंशन लाइक 25 इट रिमेन सेम. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम द लेयर वी विल सेलेक्ट D फॉर डार्क. अच्छा, बाद में L एंटर करेंगे एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लॉट वी विल ड्रॉ ए लाइन 25 mm ऑन द राइट साइड. 25 एंटर, एस्केप. बाद में वापस एंटर करेंगे और उसी मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ 25 एंटर करेंगे. तो देखो ये 50 mm का स्लॉट का ऊपर का लाइन आ गया. बाद में आप L एंटर करो एंड एज पर द क्वेश्चन जॉइन द टॉप कॉर्नर ऑफ द स्लॉट विद द बॉटम कॉर्नर. तो इसको इसे ज्वाइन करना है एंड अगेन एंटर करो, ज्वाइन दिस टॉप कॉर्नर विद द बॉटम कॉर्नर. तो इस तरीके से मैंने स्लॉट रेडी किया मैंने. नाउ जस्ट फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऊपर डायमेंशन में ना अगर मैं एंगुलर क्लिक करता हूं एंड इफ आई वांट टू चेक द एंगल फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये देखो कितना डिग्री आ रहा है, 30. क्वेश्चन में कितना दिया है, 45. अच्छा, ये चेक करते हैं एंगुलर डायमेंशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ये 60 डिग्री आ रहा है. या फिर अगर मैं ये ऑर्थो बंद करता हूँ, आई थिंक ऑर्थो बंद करना पड़ेगा, 1 मिनट. तो ये आइसो मोड में चेक कर रहे हैं, देखते हैं ऑर्थो मोड में क्या बता रहे हैं. सो फ्रॉम ईयर टू ईयर ये कितना एंगल आ रहा है, 30. अच्छा, वही आएगा. और ये वाला कितना आ रहा है, 60 आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट हैज हैपेंड इज, ऑर्थो में वो 45 है, बट इन आइसो नन ऑफ देम इज 45. तो अगर ये 45 नहीं आ रहा है आइसो में, इट मींस यू आर करेक्ट. किसी का एग्जैक्ट 45 आ रहा है मतलब गड़बड़ है, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक इज एंगुलर डायमेंशंस गेट्स डिस्टॉर्टेड, इट वोंट रिमेन सेम. ठीक है. अच्छा, लास्ट में ये स्लॉट जैसा लग नहीं रहा है बिकॉज ये कॉर्नर से थर्ड लाइन जानी चाहिए. सो आई पुट आइसो मोड ऑन. अच्छा, थर्ड लाइन शुड गो अलोंग द विड्थ. अगर मेरा कर्सर तो राइट पेन पे, सो प्रेस F5, L एंटर एंड फ्रॉम दिस कॉर्नर आप इंटेंशनली अंदर चले जाओ. नाउ सी यू हैव टू जूम और इसको जानबूझ के येलो लाइन को क्रॉस करवाओ, थोड़ा से क्रॉस करना है जहाँ पे कोई सिंबल. क्या हो गया? पहिला फोन कर, OTP विचार. आवाज क्लियर नहीं है, अगेन रिपीट.
हेलो, एक बार रिपीट करो। हेलो, Sorry sir, by mistake on हुआ भाई. अच्छा कोई बात नहीं। सो फ्रॉम हियर अलोंग द विड्थ यू हैव टू क्रॉस दिस येलो लाइन एंड क्लिक एनीवेयर। उसके बाद इसको रीसेलेक्ट करो और कंट्रोल पॉइंट से इंटरसेक्शन पे लेके आओ, तो नाउ इट लुक्स लाइक अ स्लॉट। अच्छा, वही 30 डिग्री यहाँ पे भी वही यहाँ पे भी ट्राई करेंगे। एल एंटर, क्या ये कॉर्नर से वो लाइन दिखेगी? देखते हैं। सॉइल तो नहीं, ऑलमोस्ट ओवरलैप हो रहा है। देखो, दैट लाइन इज ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग विद द एज ऑफ द स्लॉट। तो यहाँ से वो लाइन नहीं दिखेगी, थर्ड लाइन। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट में करना क्या मैं बता दूं। कम आउट ऑफ द आइसो मोड। अच्छा, आप क्या करोगे? डी टेक्स्ट टाइप करोगे। डी टेक्स्ट, सबको मालूम है डी टेक्स्ट क्या होता है? डायमेंशन टेक्स्ट, जैसे हमने ऑर्थो में किया था। एंटर करना है, स्टार्ट पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करो। हाइट नीचे पूछा है, देखो नीचे का कमांड विंडो में पढ़ो। हाइट तो 3 के बदले 5 ले लो। रोटेशन एंगल 0 रहने दो एंड टाइप ओ फ्रॉम द ओ एंटर एस्केप। तो ये आपको ओरिजिन है। मूव करना है तो आप कर सकते हो ओरिजिन को। तो थोड़ा सा ऑर्थो ऑफ करके यू कैन मूव एंड गेट इट समवेयर हियर। अरे वापस कराओ। ये हमने किया था ऑर्थो में, वैसे ही है। तो वापिस एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डी टेक्स्ट टाइप करो। डी टेक्स्ट मतलब डायमेंशन टेक्स्ट। डायमेंशन टेक्स्ट एंटर करो। स्पेसिफाइड स्टार्ट पॉइंट, तो जजमेंट से यहाँ पे किधर आप नीचे क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट पूछ रहे हैं तो करना कुछ नहीं है, जो नीचे पूछा है उसका जवाब देते जाना है। अच्छा, स्पेसिफाई हाइट मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, आप 20 एंटर करो। 20 स्पेसिफाई हाइट 20 एंटर करके देखो। अभी बॉटम में पूछ रहे रोटेशन एंगल, तो एज यू डिस्कस्ड अगर रोटेशन एंगल 0 है तो टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल आएगा, और अगर इंक्लाइंड है तो 30 डिग्री पे आएगा। तो उसको 0 ही रहने दो, एंटर करो सिर्फ। अब वहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है। ओह 20 बहुत ज्यादा हो गया। कर्सर वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, तो यू शुड टाइप ओ एंटर एस्केप। तो ओ यहाँ पे ओवरलैप हो गया है, तो मूव कमांड एम एंटर। मूव कमांड करो जो आपको पता है। क्लिक ऑन दिस ओ एंटर, और इसको लेके नीचे कहीं पे सेट कर लो। अच्छा, जिसको पता नहीं है, सपोज से वो बहुत बड़ा हो गया है, आपको थोड़ा छोटा करना है विथआउट ट्रायल एंड एरर। तो देयर इज अ कमांड कॉल एज स्केल, SCALE। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ओ को सेलेक्ट करो, एंटर करो। बेस पॉइंट कहीं पे भी ले लो, और देखो इसको यू कैन इंक्रीज द हाइट और स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो अपने को छोटा करना है तो 0.75 देते। तो देखो वो छोटा हो गया। तो आप स्केल को बड़ा छोटा कितना भी कर सकते हो, और मूव करके इसको जगह पे ला सकते हो। अच्छा, ये मैंने अच्छा मैं वापस बता दूं, ये ओ देना कंपलसरी नहीं है। इट इज जस्ट टू शो दैट दिस इज द ओरिजिन, इट इज नॉट कंपलसरी। ओ नहीं दिखाए तो भी चलेगा, सो बेटर इसको छोड़ दो, जाने दो, वरना सब लोग कंफ्यूजन में। तो फॉरगेट अबाउट इट। तो एग्जाम में इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। नो नीड टू शो ओरिजिन 30 डिग्री, बट मैनुअल ड्राइंग में दिखाना है, और ये स्लॉट बाजू में ड्रॉ किया हुआ होना चाहिए। ओके, द स्लॉट शुड बी बिसाइड्स हियर। ओके, तो बाय दिस ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू जस्ट होल्ड ऑन, मैं जरा एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा दूँ। चलो जरा वेट करो। आई विल अनशेयर एंड शेयर इट अगेन। कैन यू सी अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन? एक सेकेंड ना। सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? Yes sir. हाँ, मेरे को इसका हाइट जरा ढूंढ के बताओ, हाइट कितना है?
So what will be the height of this object? 76. 76 गलत जवाब, क्योंकि 76 तो खाली प्लेट का हाइट है. What about this part extending out? 76 तो यही हो गया ना, प्लेट का हाइट हो गया. अपने को नीचे देखो ये पार्ट 120. how much? 120. 120. Yes. कैसे आया? वत्सल बताओ, गिन के बताओ कौन सा चीज ऐड किया. So 76 का आधा किया. 76 का आधा कितना होता है? 38. 38 plus 45. 38 plus 45 कितना होता है? 83. 83 plus 25 वो आधा सर्कल. 83 plus 25 नहीं कर सकता है. 83 तक बराबर है. सबको देखो 83 कैसा आया. पीछे का प्लेट 76 का हाइट दिया है, तो ऊपर से 76 का आधा ले लो, 38 सेंटर लाइन तक आएगा. तो द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लेट टिल सेंटर लाइन इज हाफ ऑफ 76, 38. तो ये डिस्टेंस 38 है. उसके बाद सेंटर लाइन से 45 ऐड कर दो तो आपको 83 मिलेगा. 83 से कम बैक हियर अगेन प्रोजेक्ट करो, यू कैन सी सेमी हेक्सागोन. 12.5. ये पोर्शन क्या है? सेमी हेक्सागोन है. तो सेंटर लाइन से सेमी हेक्सागोन का डिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो 83 तक करेक्ट है. आगे कैसे मिलेगा? तो सब लोग याद रखो वापस, ऊपर से 25 होगा ना? नहीं होगा. हाउ मच? 25 into root 3. 25 रूट 3. अरे बाप रे, हम लोग को इतना मैथ्स नहीं आते ना, ये ग्राफिक्स सब्जेक्ट है ना, तो इतना मैथ्स 26 कैसा है? कंसीडर कर देंगे सर. नहीं चलेगा. 26 कैसा कर सकते हैं? इट विल बी लेस देन 25. तो 25 जो सर्कल है उसका आधा लेके प्लस जो नीचे का 12 है वो ऐसा नहीं हो सकता. तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है. तो सब लोग अच्छे से ध्यान दो स्क्रीन पे, ये अपना लास्ट पार्ट रहेगा. ओके तो सर, हाँ बोलो. ऊपर वाला सर्कल है उसका जो हाँ. डायमीटर है वो जो नीचे सेमी हेक्सागन है उसका बेस है. बराबर. तो ये 50 हो गया ना. हाँ, वो 50 को लेंगे और वो हम लोग ने जैसे नॉर्मली एंगल के थ्रू वैसे किया था ना पिछले क्वेश्चन में, वैसे हाँ, करेंगे. मतलब एंगल क्या लेंगे? नहीं पता सर. हेक्सागोन का एंगल ले लेंगे सर 60 हाँ, डिग्री. इसका मतलब ऐसा हो गया. तो सब लोग भी देखो कैसे करेंगे. ऊपर से 38, ये सबको समझ में आ गया, प्लस 45, टोटल 83 हो गया. कम भी बाय एनी हाउ इफ यू कैन गेट दिस वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सेमी हेक्सागोन, अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाता है एंड इफ यू कैन ऐड दैट विद 83 यू विल गेट द टोटल हाइट. तो मैं बताओ आपको कैसे करना है. सब लोग देखो अच्छे से. आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर वन मोर टाइम बिकॉज ऑटोकैड में स्विच होने के लिए ये करना पड़ता है. सो आपको अभी सबको ऑटोकैड दिख रहा है, राइट? सो व्हाट यू शुड डू इन द एग्जाम इज, सपोज ऐसा क्वेश्चन आया सेमी हेक्सागोन वाला, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन. टाइटल लिखो, टू ड्रॉ हेक्सागोन इन ऑर्थोग्राफिक. सॉरी, टू ड्रॉ हेक्सागोन, या टू ड्रॉ हेक्सागोन इन ऑर्थोग्राफिक मोड. तो अपने को ऑर्थोग्राफिक में वो हेक्सागोन दिखते हैं, आइसोमेट्रिक में वो ट्विस्ट हो जाएगा थोड़ा, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाएगा. ओके, सो टाइटल लिखो, टू ड्रॉ हेक्सागोन इन आइसोमेट्रिक और इन ऑर्थोग्राफिक मोड. टू ड्रॉ हेक्सागोन इन ऑर्थोग्राफिक मोड, उसको अंडरलाइन करो. हाँ, सबसे पहले आपका जो कर्सर है वो ऐसा ऑर्थोग्राफिक मोड वाला होना चाहिए, दैट इज प्लस साइन वाइट कलर. अभी कमांड का नाम है पॉलीगॉन एंटर. क्या नाम है? पॉलीगॉन एंटर, शॉर्ट फॉर्म POL एंटर. तो टाइप करो अपना कीबोर्ड, लिख के रखो, कमांड इज पॉलीगॉन एंटर, शॉर्ट फॉर्म POL एंटर. अब जैसे मैंने POL एंटर किया, द सॉफ्टवेयर आस्किंग एंटर नंबर ऑफ साइड्स. इसका मतलब आप ये कमांड से देखो, ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ है, इट मींस यू कैन ड्रॉ स्क्वायर, यू कैन ड्रॉ पेंटागन, हेक्सागन, octagon, etc. तो इन आवर केस नंबर ऑफ साइड्स आर 6 बिकॉज हेक्सागन है तो 6 है, सेमी रहेगा तो 3 है, बट यू शुड ड्रॉ फुल हेक्सागन. सो आई टाइप 6 एंटर. आफ्टर आई टाइप 6 एंटर, तो सॉफ्टवेयर आस्किंग स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन. तो बाहर किधर भी क्लिक कर लो. तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया. अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थरोली. देखो, 2 ऑप्शन पूछे अपने को, एंटर एन ऑप्शन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल. तो दोनों में
क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. सो वेन एवर साइड ऑफ द हेक्सागन इज गिवन, तो ये क्वेश्चन में हेक्सागन का साइड दिया है कि नहीं दिया है? ये नहीं, क्वेश्चन में दिया है, दिया दिया ना? है, 25 दिया है. 25 दिया है. सो वेन एवर हेक्सागन इज गिवन, तो सपोज मैंने आई टाइप किया, एक मिनट, आई एंटर 25 एंटर. ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेक लीनियर डायमेंशन. ओके, सो वेन एवर क्वेश्चन में साइड ऑफ द हेक्सागन दिया रहेगा, यू शुड टाइप इंस्क्राइब्ड आई एंटर. तो सब लोग लिखो, if side of the hexagon is given, if side of the hexagon is given, then select inscribed bracket में I enter, select inscribed bracket में I enter, और उसके नीचे लिखो if side of the hexagon is not given, if side of the hexagon is not given, select circumscribed option, select circumscribed option. ठीक है, so look at the screen now. I will type POL enter, number of sides 6 enter, center of the polygon किधर भी क्लिक कर लो. अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन पूछा है inscribed या circumscribed. तो in our case side of the hexagon 25 is given, तो you should type I enter from the keyboard. तो आप कीबोर्ड से I enter करेंगे. After type I enter, specify radius of circle. तो नीचे लिखो, सॉफ्टवेयर आपको पूछ रहे हैं specify radius of circle. तो write down specify radius of circle, in bracket write down enter the side of the hexagon. Enter the side of the hexagon. अच्छा, ऐसा क्यों करना है? अगर आपको सॉलिड याद रहेगा, इन सॉलिड्स क्वेश्चन ऐसा रहता है, सपोज हेक्सागन ऑफ बेस 30 mm, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 mm कंपास में लेके सर्कल बनाते हैं और फिर 6 बार कट करते हैं. इसीलिए जो साइड ऑफ द हेक्सागन होता है ना, दैट इज इक्वल टू रेडियस. सो यू शुड टाइप रेडियस 25 फ्रॉम द कीबोर्ड और उसको एंटर करो. यहाँ पे हेक्सागन आ गया है, बट आप इस पर ज्यादा भरोसा मत करो. आप क्या करो, मीडियम डार्क सेलेक्ट करो और लीनियर डायमेंशन चेक करो कि क्या क्वेश्चन में 25 दिया वो है कि नहीं. हाँ, 25 है, देखो. बट वाई वी आर ड्रॉन दिस हेक्सागन टू फाइंड हाफ द डिस्टेंस ऑफ हेक्सागन. तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाफ डिस्टेंस भी 25 रहता है, चलो देखते क्या है. तो वापस लीनियर डायमेंशन में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट ये कॉर्नर, सेकेंड पॉइंट ये कॉर्नर, एंड वी विल ड्रैग द माउस आउट. तो देखो 22 है. So now if I ask you what is the height of the क्वेश्चन में हाइट कितना है, तो 83 तक राइट था सबका, प्लस 22 ऐड करना पड़ेगा. You have to add 22. So the side of the hexagon can be obtained only by drawing the hexagon like this. सबको क्वेश्चन क्लियर है? All of you have understood? So if I ask you the height, it is half of 76, 38, sorry, क्या तो कितना था? 38 बराबर. 38 प्लस जो डिस्टेंस है 45 प्लस 22 mm. सो डोंट बी अंडर इंटेंशन दैट अगर ये 25 है तो हाफ द हेक्सागन भी 25 रहेगा, वो कम रहेगा क्योंकि वो अक्रॉस फेस डिस्टेंस है. और ये जो 25 मतलब अक्रॉस कॉर्नर डिस्टेंस है, तो वो अलग है. कॉर्नर डिस्टेंस ज्यादा होता है और फेस डिस्टेंस कम होता है, इसलिए 22 आ रहा है. ओके, सो बाय दिस आई एंड विद टुडे सेशन. सर बोलो. हाँ, ये हेक्सागन सिमेट्रिक है, बराबर? करेक्ट. तो फिर सेमी हेक्सागन का एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं ना? वैसे भी कर सकते हैं. ड्रॉ ए लाइन और दोनों बाजू 60 डिग्री बना दो. हाँ, फिर हाइट मार्क करके. उसमें मेहनत ज्यादा है, उसको आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन मालूम होना चाहिए आपको, फिर जो ठीक लगे वो. ओके, तो दिखाना पड़ता है एग्जाम में. एग्जाम में ये कैसा है वो दिखाना पड़ेगा. हेक्सागन साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा. यू हैव टू शो दिस इन द क्वेश्चन बिसाइड द आंसर. अच्छा, अभी आपका 3 दिन टेस्ट है, राइट? यू हैव टेस्ट फॉर 3 days. तो इट इज पॉसिबल दैट वी माइट मीट ऑन सैटरडे आफ्टर द टेस्ट फॉर आइसोमेट्रिक.
बिकॉज नेक्स्ट फ्राइडे को एग्जाम है ग्राफिक्स पे, तो उससे पहले 2-3 क्वेश्चन आइसोमेट्रिक का हो जाना चाहिए ऑटो कैड पे, और एक आध 2 क्वेश्चन सेक्शन ऑर्थो पे हो जाना चाहिए। ओके, तो आप लोग डिसाइड कर लो और सीआर को बता दो कि सैटरडे आप टेस्ट के बाद ब्रेक लेके 1-2 घंटे का ब्रेक लेके, तो इस सैटरडे को कौन सा एग्जाम है मालूम है ना? कम्युनिकेशन स्किल है शायद, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन टेक्निक है। हेलो एनीवन, सैटरडे कौन सा पेपर है? यस सर, पीसी का एग्जाम है। हाँ, तो पीसी में ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहते शायद। सो आपके ऊपर है, अगर अच्छे से खत्म करना है, ऐसा बहुत सारी चीज है सीखने के लिए। इफ यू वांट टू लर्न, वी कैन मीट ऑन सैटरडे फॉर 1 आवर। ओके, तो सपोज 12 to 1 मिलना है, तो वी कैन मीट 12 to 1 एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चन स्पेशली ऑन ऑटोकैड। ठीक है, सो आई विल अनशेयर, स्टॉप रिकॉर्डिंग। Recording Sir. stopped. मतलब जॉइन टीम्स फॉर अटेंडेंस। हाँ Sir. बोलो, हाँ बोलो। सर सैटरडे को केमिस्ट्री का वाइवा भी है। अच्छा, तो फिर सैटरडे कैंसिल कर